वेलकम टू StudyIQ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, ऑब्विएट। ऑब्विएट शब्द का अर्थ होता है टू एलिमिनेट, टू वार्ड ऑफ। जब आप किसी चीज़ को अननेसेसरी कर देते हैं उसके लिए हम ऑब्विएट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वर्ब का अर्थ होता है टू एलिमिनेट द नीड फॉर समथिंग और टू प्रिवेंट इट। व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग अननेसेसरी, जब आप रिमूव कर देते हैं, जब आप प्रिवेंट कर रहे हैं, अवर्ट कर रहे हैं, स्टेव ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्विएट शब्द का प्रयोग किया जाता है। When you do away with something or ward off something. Let's look at the usage. This new medical treatment obviates many risks associated with surgery. So obviate when you do away with, prevent by effective measures to render unnecessary, उसके लिए हम obviate शब्द का प्रयोग करते हैं। Our neighbor's dog won't keep us awake tonight. So whenever you're making something unnecessary, उसके लिए obviate. Disjune शब्द का अर्थ होता है breakfast, morning breakfast, first meal of the day को disjune बोला जाता है। Let's look at the usage. We had a sumptuous disjune when we started the journey. Sumptuous, satiating, disjune. Moving on to the next word, duress. Duress शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी को डरा देते हैं, धमका देते हैं, that too by coercion, by physical means, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उसके लिए हम duress शब्द का प्रयोग करते हैं। coercion, forcible restraint और restriction, जब आप किसी को फोर्स करके स्टॉप करवा रहे हैं। compulsion by threat, arm twisting is a very important synonym of the word duress. Force, pressure, threats used to coerce someone into doing something against their will or better judgment. जब आप किसी को coerce कर रहे हो, उनको इंश्योर कर रहे हो, डरा के वो काम करे अपनी खुद के will के against, उसके लिए we're going to be using the word duress. So coercion, it becomes a very important word to explain the noun duress. Let's look at the usage. She gave her statement to the judge under duress. That means she gave her statement under stress, under restriction, under the entire coercion. Moving on to the next word, afflatus. Afflatus शब्द का अर्थ होता है divine inspiration. जब divine inspiration आ जाती है उसके लिए हम afflatus शब्द का प्रयोग करते हैं। इस noun का अर्थ है inspiration, a divine creative impulse or inspiration, a sudden rush of divine inspiration, उसके लिए afflatus शब्द का प्रयोग किया जाता है। Let's look at the usage. The dancer was struck with afflatus and moved like she was gifted with skills from the gods. Psychics are said to possess afflatus from the divine that helps them to predict the future. Psychics होते हैं soothsayers, जो future देख सकते हैं, भविष्य को predict कर सकते हैं, उनके लिए हम psychics शब्द का प्रयोग करते हैं। So afflatus का अर्थ होता है a divine impulse or inspiration, as you can see in the image, उसके लिए afflatus शब्द का प्रयोग किया जाता है। Moving on to the next word, edacious. Edacious is something that is related to eating. जब आप बहुत gluttonous हो जाते हैं, excessive quantities में खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, उसके लिए edacious शब्द का प्रयोग किया जाता है। Of or relating to eating, someone who's a voracious eater, eschewant, gluttonous, hoggish, piggish, these are all important synonyms of the word edacious. Rapacious, ravenous, devouring or craving for food in large quantities, eating huge amounts of food ravenously, wolfish, उसके लिए edacious शब्द का प्रयोग किया जाएगा। Let's look at the usage. Watching your edacious uncle at an all-you-can-get buffet would be an alarming experience. So edacious शब्द का अर्थ है voracious, eating to excess. That edacious customer was consuming his 15th serving when he suddenly disappeared. So edacious, बहुत ज़्यादा खाने वाला. Moving on to solving the quiz of the day. Capricious शब्द का अर्थ होता है someone who's prone to a behavior change, एकदम flip हो जाते हैं, given to sudden mood swings, who's inconstant or unpredictable, उनके लिए हम capricious शब्द का प्रयोग करते हैं। Dissonant शब्द का अर्थ होता है lacking हार्मनी, कोई ऐसी चीज विच इज इनहार्मोनियस, उसके लिए डिसोनेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्पूरियस शब्द का अर्थ होता है डाउटफुल, बोगस, शैम, फ्रॉडुलेंट, उसके लिए हम स्पूरियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सो एनीथिंग दैट इज डाउटफुल, एनीथिंग दैट इज स्पीशियस, सो स्पीशियस इज एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम। शैम भी एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है स्पूरियस का, फ्रॉडुलेंट हो गया। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्पूरियस। एरियोटाइट शब्द का
अर्थ होता है स्कॉलरली, समवन हु इज वेल एजुकेटेड। सो कोई भी व्यक्ति अगर स्कॉलरली है उनके लिए एरुडाइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सरप्टिशियस का अर्थ होता है सीक्रेटिवली, जब आप स्नीकिंगली किसी काम को करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग द वर्क व्हाइल कीपिंग इट अ सीक्रेट, दैट इज कॉल्ड सरप्टिशियस। एसिडुअस शब्द का अर्थ होता है इंडस्ट्रियस, वेरी लेबरिंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, परसिवरेंस है। डिलिजेंट शब्द बिकम्स द करेक्ट मीनिंग ओवर हियर, मेटिकुलस है, इंडस्ट्रियस है, उनके लिए एसिडुअस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सगेशियस शब्द का अर्थ होता है समवन हु इज वाइज, समवन हु इज अ स्कॉलर। सो सगेशियस यहाँ पर वाइज हो जाएगा। यू नीड टू रिमेंबर समवन हु इज हैविंग मेंटल डिस्क्रेशन, समवन हु इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल डिजर्नमेंट है, दे हैव द इंटायर पावर ऑफ इंश्योरिंग कि कैसे सही डिसीजंस लेने हैं, उनके लिए सगेशियस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेनेटिक शब्द का अर्थ हो जाएगा फ्रेंजीड। इनेप्ट शब्द जो है दैट इज इनकॉम्पिटेंट, सो इनकॉम्पिटेंट विल बिकम द करेक्ट आंसर। अनस्किल्ड, क्रूड, दैट इज इनेप्ट। एग्जिजेंट का अर्थ होता है समथिंग दैट इज अर्जेंट, प्रेसिंग, वेरी डिमांडिंग, उसके लिए हम एग्जिजेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। आप चीट शीट में से यहाँ से दोबारा आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन।